Good evening, everyone. In the previous lecture, we understood the classification of public expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, developmental expenditure, and non-developmental expenditure, right? Then we understood the reasons for growth in the public expenditures, like in a developing countries like India, right? The first reason is increase in the activities of the government. The existing functions at the same times, the new functions that is carried on by the government requires huge funding. Okay, so increase in the activities of the government. It is observed that new functions are continuously being undertaken and old functions are performed more efficiently on a larger scale by the government. This leads to increase in the public expenditure. Rapid increase in the population, that is, right, we have to satisfy the basic needs of the population, and obviously the expenditure will keep on increasing. Growing urbanization, because of growing urbanizations, you need to provide them facilities like water, sanitization, electricity, roads, infrastructure, etc. And that puts pressure on the government. So public expenditure, that put pressure on the treasury of the government, and that increases the public expenditure. Increasing defense expenditure, year after year, government is spending more on defense because of unstable and hostile international relationships. And that is important for the country. Spending huge, right? Spending on defense. Spirit of the democracy, right? Democracy में regular elections होते हैं, right? And for that purpose, government has to spend a huge amount on conducting elections. There are various types of elections. सेंट्रल इलेक्शंस अलग होते हैं, स्टेट इलेक्शंस अलग होते हैं, लोकल इलेक्शंस अलग होते हैं. सो ऑब्वियसली हर लेवल पे अलग अलग इलेक्शंस, एंड दैट इंकर्स ए ह्यूज कॉस्ट. सो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सो वो कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी प्रिवेलेंट है वहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा. देन द इन्फ्लेशन, even government procures goods and services so that they can provide, right, facilities to the public. Just example, they have to construct a road, they have to construct a flyover, they have to construct a dam or airport. For that purpose, they require inputs like steel, cement, etc. Obviously, the prices of steel and cement is like increasing because of inflation. So even cost of the government increases. So जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करती है उनकी कॉस्ट इंकर होती है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर. So that is also reason increase in inflation results in increase in the public expenditure. Industrial development, right, to promote industrial development, because industrial development होने से employment generate होगा, productivity increase होगी, right, production increase होगा, income level increase होगी. But for that purpose, government has to give many benefits. It can be in the form of subsidy, it can be in the form of lower taxation, right, it can be in the form of like giving licenses, subsidies. In short, government will incur expenditure for the development of industry. अगर इंडस्ट्री डेवलप करनी तो वहां पे बाकी सब फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवा के देने होंगे, लाइक रोड, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब चीजें वहां पे भी अवेलेबल करवा के देनी पड़ेगी. दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दैट. For that purpose, obviously, government incurs a huge expenditure. Disaster management, natural or artificial or man-made calamities, right, requires government to spend a huge amount for their rehabilitation. So these are one of the major reasons. There are other reasons you can also write, but these are the main reasons for increase in the public expenditure, right? So that is causes of increase in the public expenditure. Then we understood what do we mean by public revenue. It is an aggregate collection of the income with the government through various sources. Total revenue, public revenue is total collection of the revenue by the government through various sources. Basically, there are two main sources. One is taxes and another is the non-tax revenue. Tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue, tax is a compulsory contribution to be made by the citizens to the government. It is a compulsory levy. It is a levy, or it is a, you can say, right, a contribution made by the taxpayers, right, without any direct consideration or direct service.
by the government. So that is right your tax. हमने देखे थे कल right some right हमने देखे थे right some characteristics of the direct taxes. It is a compulsory contribution to the government. Then to enable government to incur expenses in common interest of the society, that contribution is to help government to make expenses, to incur the expenses right in common interest of the society. Payment of tax does not entitle a person to receive any specific direct or indirect proportionate benefits or services from the government. And levy, it is levied on incomes, that is income tax. It may be levied on the properties like stamp duty, capital gain tax, and it may be levied on goods and services like that is GST. So ये हमने समझा था. उसके बाद हमने समझा था difference between direct tax and indirect tax. Direct tax is tax on incomes and the properties. The person who is responsible to pay the tax he only has to pay the tax. He cannot shift his burden to someone else. The incidence and the impact of the tax is on the same person. He cannot transfer his burden to someone else. That kind of tax is called as direct tax. Indirect taxes are levied on goods and services. It is a tax on goods and services. It is levied at the time of production. पहले excise duty होती थी production पे. Now it is GST. It is levied at the time of production or purchase and sale of goods and services. Then in case of indirect taxation, the impact and the incidence of the tax or the burden of the tax can be shifted to the buyer. The burden can be shifted by taxpayer to other person. Like seller shifts the burden of the indirect taxes to the buyer. Buyer has to bear the indirect tax, GST. Okay. Then examples of direct taxes are personal income tax, corporate income tax, wealth tax, etc. And under indirect taxes, you can take example of GST and customs. So कल हमने ये discussion किया था and we have to move ahead. ठीक है? So just एक short revision. अभी तक हमने क्या किया है उसकी revision की. So हमने public expenditure किया, फिर हमने public revenue start किया, उसमें से हमने right tax revenue का देखा है. Try to understand. There are some principles of taxation. There are some principles of taxation. Right? Which are those principles? Try to understand. Canons are the principles of taxation given by Adam Smith. These are given by Adam Smith. Right? Just a second. Yeah. The Adam Smith, the founder of modern economics, propounded the following 4 principles. The principles are the canons of equity or equality. He said every person should pay tax. Every person should pay tax on the basis of his ability to pay the tax. Like a rich person has a more ability, higher ability to pay the tax. So rich person should be taxed more. The poor person has a less ability to pay the tax. His ability to pay tax is less. तो उसको हम lower taxes लगाएंगे. So tax should be levied on each individual on the basis of his ability to pay the tax. सबको equal रखो, but उनके ability के हिसाब से उनको tax लगाओ, ठीक है? Every person should be taxed on the basis of his ability to pay the tax. Smith suggested that every person will pay tax to the government in the proportion of his ability to pay. It means rich people should pay more tax compared to poor. So, right, in the proportion of his ability to pay the tax. आपने लगान मूवी देखी होगी, राइट ना? उसमें क्या था, राइट? 2 गुना या 3 गुना लगान, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट सबको लगान देना था, सबको टैक्स देना था. दैट इज नॉट on the basis of equality. Try to understand. It is that tax does not follow the concept of canon of equity. So ब्रिटिशर जो हमें टैक्स लगाते थे वो एक्चुअली रिग्रेसिव टैक्स था. आएगा कहाँ पे? तो यस रहेगा, देखो रिग्रेसिव टैक्स रहेगा. They used to tax, right, from rich as well as poor
एंड जनरली हायर रेट टैक्सेस लगाते थे. सो nowadays ऐसे नहीं है. If you know, if your income is above 10 lakhs, you fall into the bracket of 30% tax. If your income is or your net profit is above like अब net profit मतलब ये आप इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ. I'm not talking about the companies. कंपनीज के लिए डायरेक्टली 30% टैक्स है या 25% टैक्स है, डिपेंड्स. सो कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, उनको स्ट्रेट अवे 30% टैक्स. अगर 100 रुपीज भी प्रॉफिट होगा आपको 30% टैक्स देना है. 10 लाख का भी होगा उसका 30% टैक्स देना है. कंपनीज राइट, कोई कंपनीज को 25% टैक्स है, बट मैं नॉर्मली हम बोलते हैं 30% टैक्स में लाइक आपके कंपनीज एंड पार्टनरशिप आते हैं. एज ए इंडिविजुअल I am a sole proprietor, I am a salaried employee, I am a salaried person, या I am a partner of the firm, I am an individual. मैं इंडिविजुअल हूँ. इंडिविजुअल कैपेसिटी में देयर आर टैक्स, राइट. द टैक्स जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस. द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस. लाइक एग्जाम्पल, जीरो इंडिया में if your taxable income is between 0 to 2,50,000, your tax is nil. Your taxable income is 0 to 2,50,000, the tax is nil. If your taxable income is between 2,50,000 to 5 lakhs, you have to pay 5% tax. So 2,50,000 to 5 lakhs जितना भी रहेगा, right? If your income is example 3 lakhs, so 2,50,000 तक zero tax, 2,50,000 to 3 lakhs, 50,000 पे you have to pay 5%. 50,000 पे 5% जो भी आएगा, I think 2,500 जो कुछ भी आएगा उतना आपको टैक्स पे करना होगा. If your income is example 5 lakhs, तो 2,50,000 तक zero, up to 2,50,000 zero, up to 2,50,000 zero, more than 2,50,000 up to 5 lakhs. Example, your income is 4 lakhs, so 2,50,000 to 4 lakhs is like 1,50,000 का 5% आपको स्टेट अवे देना है. ठीक है. देन इफ योर इनकम इज 5 lakhs to 10 lakhs, बिटवीन 5 lakhs to 10 lakhs, तो जितना 5 lakhs के ऊपर रहेगा अप टू 10 lakhs उस पे आपको 20% देना है. मतलब अप टू 5 lakhs. देखो किसी की इनकम, मैं आपको सिंपल बोलता हूं, लेट मी शो यू, तो आपको समझेगा क्या है. अभी ऑब्वियसली दिस टैक्स स्लैब्स आर एक्सपेक्टेड टू बी चेंज्ड इन द 1st February बजट. ऐसे बोल रहे कि वो चेंज होंगे, बट अभी के फिलहाल मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना. इफ योर इनकम, टैक्सेबल इनकम बोल रहा हूं, इफ योर टैक्सेबल इनकम is, these are the slabs. If your taxable income is right up to 2,50,000 no tax. If it is more than 2,50,000 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, and more than 10 lakhs you have to pay 30%. Suppose your taxable income is rupees, suppose your taxable income is rupees, example 12 lakhs rupees. So मैं इसको डिवाइड करूंगा अप टू 2,50,000 0, देन 2,50,000 टू 5 lakhs, मतलब 2,50,000 आएगा at the rate of 5%. I think it is 12,500. I think, I don't exactly remember. एक बार चाहे तो चेक करो. Then 5 lakhs to 10 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs. Next 5 lakhs के लिए you have to pay 20%. 5 lakhs पे 20%. I think वो 1 lakh आएगा. And then above 12 lakhs, above 10 lakhs, above 10 lakhs आपका 2 लाख है ना, तो 2 lakhs पे 30%. I think that is 60,000. I think yes, 60,000.
तो दिस इज योर टोटल टैक्स, ये आपका टोटल टैक्स होगा। सो ये प्रोग्रेसिव टैक्स आ गया। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब एज योर इनकम प्रोग्रेसेस, एज योर यू बिकम रिच एंड रिच, योर टैक्स रेट्स इंक्रीजेस। 2,50,000 तक किसी को भी टैक्स नहीं देना है, 2,50,000 से नेक्स्ट 2,50,000, 2,50,000 से नेक्स्ट 2,50,000 मतलब 5 लाख तक। सो वो 2,50,000 आपको 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख, उस 5 लाख पे आपको 20% देना है, एंड 10 लाख के आगे जितना भी होगा यू हैव टू पे 30% अबोव 10 लाख। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब जो जिसकी इनकम 10 लाख के आगे हम उसको बोलते हैं वो 30% टैक्स ब्रैकेट में, जिसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में हम बोलते हैं वो 20% के टैक्स ब्रैकेट में, एंड जिसकी इनकम 2,50,000 to 5 लाख के बीच में वो 5% टैक्स ब्रैकेट में आता है। और हम इनको बोलते हैं जिनकी इनकम 2,50,000 के नीचे वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्सेस। सो ये प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके टैक्स इंक्रीज हो गए। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम विच इज फॉलोड इन इंडिया। और इसमें क्या होता है, जो रिच है उसको हायर रेट पे करना है, हायर रेट्स पे टैक्सेस पे करने, और जो पुअर है he has to pay the taxes at a lower rate। तो ये इट इज एज पर प्रिंसिपल और कैनन्स ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय एडम स्मिथ इज कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी। स्मिथ सजेस्टेड दैट एवरी पर्सन विल पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट in the proportion to his ability to pay the taxes, ability to pay, that is rich persons will pay higher taxes as compared to poor। canon of certainty, right, it should be sure, मतलब आपको अनसर्टेनिटी होती है, मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट, कब पे करना पड़ेगा, किस फॉर्म में टैक्स पे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी सर्टेन। आपको एग्जांपल जैसे अगर आप 10 लाख से आगे इनकम है 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आओगे, 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है 20% टैक्स स्लैब में आओगे, 2,50,000 to 5 लाख के बीच में 5% टैक्स ब्रैकेट में आओगे, 2,50,000 तक आपको टैक्स पे नहीं करना। इट इज सर्टेन। फर्स्ट फेब को ही डिसाइड हुआ आता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या टैक्सेशन रहेंगे। लाइक अभी जो बजट आएगा फर्स्ट फरवरी 2021 में जो बजट आएगा, दैट बजट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो टैक्स रेट्स बोले जाएंगे दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको किस रेट पे टैक्सेस पे करने वो आपको 1 फरवरी को ही बता रहेगा, और उसके आप कैसे पे करने। लाइक आपका पूरा टैक्स आया था, ये जो कुछ भी टैक्स होगा, आपका टोटल टैक्स आया था सपोज 1 लाख, इसमें टोटल टैक्स आया था कुछ तो 1,72,500। Are you supposed to pay tax at the end of the year? No. Actually, India में you have to pay in installments. आपको एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे करना होता है। फॉर कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म, दे हैव टू पे इन द 4 इंस्टॉलमेंट्स। उनको 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है, उनको 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है। एंड इंडिविजुअल्स को 3 इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना होता है। मतलब ये फिक्स्ड है, वो डेट्स आर आल्सो मेंशन, इस तारीख तक आपको टैक्स पे करना है। एंड आजकल कैश में नहीं, सब राइट आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू होता है टैक्स की पेमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब ऑनलाइन पेमेंट होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पूरे साल का टैक्स आ गया कुछ तो 1,70,500 विच इज टू बी पेड लाइक फॉर इंडिविजुअल्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब 31 मार्च तक आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाता है। अगर आप वैसे पे नहीं करते तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट एट ए गिवन रेट्स। सेक्शन 234 वगैरह उसके रिलेटेड डील करते हैं इन इनकम टैक्स, यू विल लर्न इन लेटर स्टेजेस। बट मैं समझा रहा हूं रेट्स फिक्स्ड होते हैं। कब रेट फिक्स होते हैं? आज ही देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो बजट आएगा 1 फेब को, जो बजट आएगा 2021 को, ये बजट रहेगा फॉर द ईयर, मतलब इसमें जो टैक्स रिलेटेड चीजें रहेगी, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, दैट इज एप्लीकेबल फॉर 1 अप्रैल 2022 टू 21 to 31st March 2022। इस ईयर के लिए यू ऑलरेडी नो द रेट्स ऑफ टैक्स ऑन द फर्स्ट फेज दे, और मैंने जो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है दैट इज यूनिवर्सल, दैट एवरीबडी नोज, वो इनकम टैक्स में। सो 3 इंस्टॉलमेंट में आपको टैक्स पे करने फॉर इंडिविजुअल्स एंड 4 इंस्टॉलमेंट में कॉर्पोरेट्स को। इट इज ऑलरेडी नोन,
सो यू नो कि आपको टैक्सेस कब पे करने, व्हाट आर द ड्यू डेट्स और लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, टैक्स हमें किस फॉर्म में पे करना है, कितने रेट पे पे करना है, सर्टेनिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी। जैसे लगान मूवी में एंड तक पता नहीं था कि हमें 3 गुना लगान देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, लास्ट बॉल तक नहीं पता चला, लास्ट बॉल में जब वो 6 गया तब पता चला कि हमें टैक्स नहीं देना है। तो 3.5 आवर हम देख ही रहे थे। मूवी वॉज रियली गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, नो राइट। अगर सर्टेन रहेगा तो पीपल और सिटीजन कैन अकॉर्डिंगली प्लान दियर टैक्स पेमेंट्स। सो द सेकंड प्रिंसिपल इज, और second canon is canon of certainty. According to Smith, taxpayer should know in advance how much tax he has to pay, at what time he has to pay, and in what form the tax is to be paid. He should know, right, how much, मतलब उसको rates पता होने चाहिए at least, how much tax he has to pay, at what time he has to pay the tax, and in what form he has to pay the tax. आगे कैनन ऑफ कन्वीनियंस, पेमेंट करते टाइम कन्वीनियंस होना चाहिए, टैक्स पेमेंट करते टाइम कन्वीनियंस होना चाहिए। लाइक अकॉर्डिंग टू राइट दिस कैनन, एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन सच अ मैनर एंड एट ए सच टाइम दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर्स। लाइक एग्जाम्पल, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन यू मस्ट हैव हर्ड द इनकम टैक्स डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड मेनी टाइम्स, because during this lockdown it was not possible to maintain the books of accounts on regular basis, because CA लोग client के place पे नहीं जा सकते, client CA के office में नहीं आ सकते because of lockdown everything. तो considering the problems faced by the chartered accountants, the like tax community, जो भी commerce community है, पूरे trade और organizations वगैरह, उनका problem समझ के government kept on increasing the due dates, because they know कि जनरली ऐसे प्रॉब्लम आता नहीं, बट इस साल में प्रॉब्लम है, सो दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द डेट्स। सो दे अंडरस्टैंड कि देयर शुड बी नो इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ द टैक्सेस एक्सेट्रा। सो यही लिखा है, एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन ए सच ए मैनर एंड एट ए सच टाइम दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स का कन्वीनियंस देखना चाहिए। लाइक I will share my personal experience. आप लोग कभी नहीं करोगे ये, बिकॉज आपको कभी होगा भी नहीं आपके लाइफ में। When I started my articleship in the year of 2008, in the month of August 2008. I exactly don't remember the date. In the month of last days of August 2008, at that point of time, the income tax returns were to be submitted or to be filed in physical form. मतलब आपको फॉर्म्स मिलते थे, जैसे हम एग्जाम का फॉर्म आप वाडिया में जाके फॉर्म भरे, फिल किया ना और वहां पे जाके दिया, वो हो गया फिजिकल ना। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन फॉर्म और अपने आप सबमिट हो गया। लाइक आपने आईसीआई का फॉर्म सबमिट किया, आईसीआई जिन्होंने फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किया, और ऑनलाइन फॉर्म हो गया, आपको फॉर्म की प्रिंट आउट नहीं निकालनी पड़ी, आपको राइट ऑनलाइन फॉर्म भरा, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और फॉर्म अपने आप सबमिट हो गया, पेमेंट कर दिया अपने आप, वो ऑनलाइन हो गया। जैसे आपने कॉलेज में वाडिया मिराज में आपने वो एग्जाम का फॉर्म लिया, आपने फॉर्म भरा, वहां पे जाके सबमिट किया और पेमेंट किया, वो हो गया फिजिकल। सो व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप, मतलब मेरे फर्स्ट 2 years ऑलमोस्ट यू कैन से, हम लोगों को इनकम टैक्स के लाइन में जाके खड़ा रहना पड़ता था। सो जितने क्लाइंट्स आए जिनके रिटर्न्स भर दिए, वो फिजिकली वो फॉर्म फिल करना पड़ता था, उनकी सिग्नेचर लेनी पड़ती थी वगैरह वगैरह सब। वो फॉर्म ठीक से 1-2 बार देखने के बाद उसके साथ लाइक जो एविडेंस होते हैं, लाइक आपने एडवांस टैक्स पे किया, मैंने बोला 3 इंस्टॉलमेंट में आपको टैक्स पे करना होता है, तो वो एडवांस टैक्स बोलते हैं, यू पे टैक्स इन एडवांस इन द 3 इंस्टॉलमेंट। तो एडवांस टैक्स के प्रूफ, टीडीएस होता है, आपका टैक्स कलेक्ट होता है डायरेक्टली, उसके प्रूफ, उसका फॉर्म 26AS मिलता है, फॉर्म 26AS होता है, इस कोई लोगों ने सुना होगा 26AS, वो आपको अटैच करना होता था। बहुत सारी चीजें आपको अटैच करके वो रिटर्न आपको इनकम टैक्स ऑफिस में फिजिकली जाके देना पड़ता था। एंड आई रिमेम्बर, अगर हम लाइन में खड़े रहते तो 2-3 घंटे हमें खड़ा रहना पड़ता था, इतनी भीड़ होती थी। मतलब एक चीज थी, वो कभी कभी आई मिस दैट, बिकॉज वहां पे सब फ्रेंड्स मिलते थे जो भी सीए कर रहे हैं, जो कॉलेज में हम नहीं जाते थे, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिस के लाइन में कोई ना कोई आपका पहचान वाला मिलता था, फिर वहां पे सब लोग टाइम पास करते थे। मतलब टाइम पास मतलब लाइन में खड़े तो गप्पे वगैरह ये सब चीजें। सो आई रिमेम्बर दैट कि वो बहुत इनकन्वीनियंस होता था।
मतलब पूरे लाइन में खड़े रहो, एक रिटर्न अगर फिर से ऑफिस से कोई दूसरा रिटर्न आएगा फिर से लाइन में खड़े रहो वो रिटर्न, तो एक बंदा उसके लिए रहता था, वो लाइन में खड़ा रहेगा पूरा सीजन, तो वो लाइन में चलता रहेगा, उसको रिटर्न्स लाते देंगे, वो फिल करते रहेगा, फिर लाइन में खड़ा रहेगा, ये उसकी सिस्टम चालू रहती थी उस, राइट। अभी वैसे नहीं है, आपको कहाँ पे फिजिकली कुछ नहीं देना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है राइट आपको अपलोड करने होते हैं, कहाँ पे फिजिकली कुछ नहीं देना होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कन्वीनियंस इंक्रीज हो गया एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से ओवरऑल लाइक नंबर ऑफ रिटर्न्स दैट आर बीइंग फाइल्ड आल्सो इंक्रीजेस। सो कन्वीनियंस ऑब्वियसली इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से कन्वीनियंस इंक्रीज हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट convenience of the taxpayers at the time of payment of the taxes, that is canon of convenience. Then the last one is canon of economy. So what is economy? Economy मतलब I am not talking about Indian economy. Economy means like example आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, it will help you to generate revenue, but वो revenue collection के लिए जो एक्सपेंडिचर करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दैट शुड बी लेस। मतलब एग्जाम्पल सपोज इनकम टैक्स ऑफिसर किसी बंदे के पीछे लगा, उससे आपको लेने 10,000 का टैक्स, एंड ये 10,000 का टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर स्पेंड 25,000 रुपीज टू कलेक्ट 10,000 टैक्स, द एक्सपेंडिचर इज 25,000, देयर इज नो प्रॉफिट। ये गलत, ये मतलब ऐसे करेंगे तो पागल बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 10,000 कलेक्ट करने के लिए आप 25,000 का खर्चा कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड टैक्स, दिस इज नॉट गुड टैक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इकोनॉमी देखनी है कि मैं कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं, उसके लिए कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट। सो द कलेक्शन कॉस्ट शुड बी वेरी लेस, should be some in some fractions or in some percentage of total tax collection। यहां पे तो उल्टा हो गया, 10,000 टैक्स के लिए आपने 25,000 का खर्चा किया। दिस डजंट मेक एनी लॉजिक। इट इज बेटर नॉट टू कलेक्ट टैक्स इन दैट केस। यही वेल टैक्स के साथ हुआ। मैंने बोला था वेल टैक्स एबोलिश हुआ था व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, वो लास्ट टाइम था जब वेल टैक्स प्रैक्टिस में था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे सिलेबस में था 10 मार्क्स का सीए फाइनल में वेल टैक्स, आई स्टिल रिमेंबर। एंड वो जैसे भी एग्जाम पास हुआ वेल टैक्स निकाल दिया गया। रीजन था लोग वेल टैक्स पे नहीं करते थे, एंड जब गवर्नमेंट वेल टैक्स के लिए स्क्रूटिनी या असेसमेंट करते थे, स्क्रूटिनी असेसमेंट मतलब टैक्स पेयर को बुलाना, उसके पूरे बुक्स चेक करना वगैरह, वो सब उनकी कॉस्ट। आपने मूवीज देखी होगी कोई रेड मूवी वगैरह, उसमें अजय देवगन पूरा स्टडी करता है, देखो उसके फैक्ट्रीज में जाके वगैरह, वो सब चीजें उसको बोलते हैं असेसमेंट करना वगैरह, बुक्स वगैरह स्टडी करना, राइट, और टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वेल टैक्स के केस में प्रॉब्लम क्या था, जितने टैक्स कलेक्शन था ना उससे ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर था। कलेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट पीछे लगती थी ना, उसका खर्चा ज्यादा था टैक्स कलेक्शन। तो गवर्नमेंट ने बोला देयर इज नो पॉइंट इन कलेक्टिंग द वेल टैक्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन, उसके ऑफिसर्स आपको अपॉइंट करने पड़ते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रहती है, उसके लिए अलग ऑफिसर लगेंगे, उसके लिए अलग फॉलोअप रहेगा, अलग सिस्टम लगेगी। वो जो टोटल कलेक्शन के लिए जो कॉस्ट गवर्नमेंट इंकर करे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट is much higher than the revenue that is being collected. There is no point in collecting such tax. इसलिए गवर्नमेंट ने वेल टैक्स कैंसिल किया, एबोलिश किया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सो जब भी गवर्नमेंट असेसमेंट करती है या स्क्रूटनी करती है तो गवर्नमेंट देखती है कि कॉस्ट कितनी लगेगी और टैक्स कितना कलेक्ट होगा। अगर उनको लगता है कि यस कि राइट देयर इज अ पॉइंट इन मेकिंग दैट एक्सपेंडिचर, देन ओनली दे विल इंकर द एक्सपेंडिचर। इसलिए ये बोलना नहीं चाहिए, बट गवर्नमेंट छोटे छोटे लोगों के पीछे इतना नहीं पड़ती। जब भी असेसमेंट निकलेगी या स्क्रूटिनी निकलेगी, इंडिविजुअल्स की इतनी नहीं निकलती, छोटे मोटे जो टैक्स पेयर्स है उनकी नहीं लगती, छोटे छोटे टैक्स पेयर्स की नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है इन लोगों को अगर हम पीछे लगेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा देन व्हाट दे विल गेट। जनरली गवर्नमेंट बड़े लोगों को, बड़े बिजनेसेस को टारगेट करती है बिकॉज वहां पे टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए कॉस्ट लगेगी। द कॉस्ट शुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स। हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। आप जो कॉस्ट इंकर करने वाले हो बेनिफिट के लिए,
बेनिफिट शुड बी मच हायर देन द कॉस्ट, देन ओनली यू शुड डू दैट। तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कैनन द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम। क्या बोला उन्होंने? कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम, जितना कम हो सकता है उतना बेटर है। इफ ए मेजर पोर्शन ऑफ द टैक्स प्रोसीड्स is spent on the tax collection itself, ऑलमोस्ट आप 50-60% टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और उसका 50-60% जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसका 50-60% आप कलेक्शन के लिए खर्चा कर रहे हो, तो आपके हाथ में 30-40% ही आता है। देयर इज नो पॉइंट इन कलेक्टिंग सच टैक्स दैट, ठीक है। इफ मेजर पोर्शन ऑफ द टैक्स प्रोसीड्स इज स्पेंट ऑन टैक्स कलेक्शन इटसेल्फ, देन सच टैक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए गुड टैक्स। सो 4 प्रिंसिपल्स है, ध्यान देना। पहला है कैनन ऑफ इक्वालिटी और इक्विटी, एवरीवन विल पे टैक्स in proportion of the ability to pay the tax. Canon of certainty, the taxpayers must know in advance, right, the tax they have to pay, the amount of the tax they have to pay, when they have to pay, and in what forms they have to pay. Canon of convenience, taxpayers should be at a convenience at the time of making the payment of taxes or filing the returns. And the last one, canon of economy, the cost of collection of the taxes should be minimum, right? So benefit should be more, cost should be less. That is the principles. ठीक है, आगे। Then we understood the difference between direct tax and indirect tax, बराबर? There are basically 3 types of taxation system which you will find in the world. Globe में आप 3 types के taxation system देख सकते हो। One is proportionate tax, like मैंने आपको बोला कंपनीज के केस में डायरेक्टली 30% टैक्स। आपकी कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपीज है तो भी 30% टैक्स, 1 लाख है तो भी 30% टैक्स, 10 लाख है तो भी 30% टैक्स, अगर 100 करोड़ है तो भी 30% टैक्स। इनकम का कोई भी इनकम है उसका डायरेक्टली 30% टैक्स। लाइक दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं, व्हेन यू विन द लॉटरी, आप केबीसी देखते हो, राइट? आपको राइट 1 करोड़ की आपने वो लाइक आपने वो क्विज जीता, आपको 1 करोड़, आप करोड़पति बन गए 1 करोड़। गवर्नमेंट डायरेक्टली उसका 30% टैक्स लगाती है, डायरेक्टली 30% टैक्स निकलता है। विनिंग्स ऑफ लॉटरी, विनिंग्स ऑफ सच क्विज शोज, या एग्जांपल विराट कोहली वगैरह जब मैचेस विनिंग प्राइज होती है उस पर डायरेक्टली 30% टैक्स लगता है, डायरेक्टली 30% टैक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसमें डायरेक्टली 30% ऑफ योर इनकम विल बी ऑफर्ड फॉर टैक्स, किस्सा खत्म, उस पर स्लैब वगैरह नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे टैक्स को बोला जाता है प्रोपोर्शनेट टैक्स। व्हेन ए टैक्स इज लेविड एट सेम एंड कांस्टेंट रेट ऑन ऑल इनकम्स इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल टैक्स। जनरली हम सब इनकम से 30% लगाते हैं। अगर ऐसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, राइट, विनिंग फ्रॉम द क्विज वगैरह, इन पे जो रहता है ना उन पे 30%, सब हमारे सब इनकम पे 30% ही डायरेक्टली लगता, सम ऑफ द इनकम्स पे 30% लगता है। अनदर एग्जांपल आई कैन गिव, जब हम कैपिटल गेन लाइक व्हेन वी सेल द शेयर्स वगैरह, या जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, इमोबल प्रॉपर्टी वगैरह, कैपिटल एसेट्स विच आर राइट सेल करते हैं, उस पे जो प्रॉफिट होता है उसको अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो डायरेक्टली 20% टैक्स लगता है। जितना भी गेन होगा, सपोज आपको 10 लाख का गेन हो गया, आपने फ्लैट सेल किया, 10 लाख का गेन हो गया, 10 लाख का 20% स्ट्रेट अवे कैपिटल गेन लगता है। बाकी आपके लाइक सैलरी आपको मिले उस पर डायरेक्टली 20% लगेगा, उस पर स्लैब वाइज लगेगा। बट ये जो 10 लाख आपने प्रॉपर्टी सेल करके कमाया उस पर स्ट्रेट अवे 20% लगेगा। तो इंडिया में मिक्सचर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया में मिक्सचर है। कोई कहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टैक्स लगाते हैं एंड मेजॉरिटी केस में हम प्रोग्रेसिव टैक्स फॉलो करते हैं इंडिया में। तो व्हाट इज द प्रोपोर्शनेट टैक्स? आपके सब इनकम का डायरेक्टली 20%, 30%, 40% जो भी होगा गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है, सबका जाएगा सेम रेट पे। व्हेन ए टैक्स इज लेविड एट द सेम एंड द कांस्टेंट रेट ऑन ऑल इनकम्स, सब इनकम्स पे, इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ए टैक्स द रेट ऑफ विच विल इंक्रीजेस विथ एवरी इंक्रीज इन द इनकम इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो की जाती है एंड रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम एग्जैक्टली प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। प्रोग्रेसिव में क्या, रिच वाले ज्यादा टैक्स पे करेंगे, पुअर विल पे लेस टैक्स। इसमें एग्जैक्टली उल्टा, पुअर विल पे मोर टैक्स,
रिच विल पे लेस टैक्स, मतलब जितनी इनकम इंक्रीज होती जाएगी उतने टैक्स रेट कम होते जाएंगे. इट इज लाइक एक्सप्लॉयटेशन इन सिंपल वर्ड्स. पुअर्स का एक्सप्लॉयटेशन रहेगा. नो वन फॉलोज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम. मे बी जहां पे रूल किए जाता है, लाइक जहां पे आप डिक्टेटरशिप बोलते हो वहां पे हो सकता है. लाइक इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे तब रिग्रेसिव सिस्टम ही थे, राइट. सो इन रिग्रेसिव टैक्सेशन, द लार्जर the income of the taxpayer, the smaller the proportion of the tax levied on him. Exactly progressive का उल्टा. So three tax systems which you will find across the globe. Proportionate, इंडिया जैसे कंट्री में प्रोग्रेसिव, मेजॉरिटी कंट्रीज में प्रोग्रेसिव है. कहां पे भी मेजर कंट्रीज लो यू विल फाइंड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ओनली. रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम्स जनरली यू डोंट फाइंड. सो ये था टैक्स रिलेटेड. नाउ व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यूज? Government not only collects money, revenue from the tax, they also collects a major chunk from the non-tax revenue. According to you, which tax system is best? Progressive, obviously. Progressive. Obviously, progressive tax system is best. उसमें लॉजिक भी है. मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है ना, कि जिसमें हम सीखा है कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा, for him the utility of the money is less as compared to the poor. Rich have less utility of the money as compared to poor, इसलिए हम उन पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं and they are even ready to pay. Poor, right, they have more utility of the money because they have less money with them, so they are not ready to pay the tax. उन पे taxes कम लगाओ. So haves to those don't have, जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, that is a progressive system. Next, non-tax revenue system. Non-tax revenue sources. जैसे मैंने बोला टैक्स रेवेन्यू तो एक सोर्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी एक सोर्स है. लाइक व्हाट? पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईपीसीएल, राइट. ध्यान देना, इंडियन ऑयल, आई वाज लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ना, IOCL, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरप्राइजेस, नवरत्न सिंपल वर्ड्स में आपको पता होंगे. सो राइट, पब्लिक रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक इंटरप्राइजेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू. ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन, these sources are different than taxes because taxes में you don't expect direct benefit, but इनके केस में फीस वगैरह में you expect direct benefits. They are different than the taxes, obviously. A brief information about these sources are as follows. First, ध्यान देना, फीस. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको आधार कार्ड निकालना है, आपको नॉमिनल फीस देनी होती है, आपको पैन कार्ड निकालना है, नॉमिनल फीस देनी है, पासपोर्ट निकालना है, नॉमिनल फीस देनी है, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेते हो, नॉमिनल फीस देनी है, HSC बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, राइट, HSC बोर्ड की, तो उसकी नॉमिनल फीस रहती है. सो दीज आर द फीस कलेक्टेड. लाइसेंस निकालना है, फीस देनी है, सो दीज आर द फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. टैक्स इज पेड कंपल्सरीली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, whereas fees is paid in return for specific services rendered by the government. Fees is paid in return of certain specific services rendered by government. टैक्स पे करोगे तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जब फीस पे करोगे तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा. एग्जांपल, एजुकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा. आप उसमें आधार कार्ड फीस, पासपोर्ट की फीस, आप पैन कार्ड की फीस, लाइसेंस, अभी बहुत लोगों ने लाइसेंस अप्लाई करेंगे उनके 12th के एग्जाम के बाद, ऑल दोस फीस, राइट, फॉल्स अंडर दिस. Prices of public goods and services. Government like provides many services to public, sells many kinds of goods to the public, and for that they charge some nominal fees. Like example, government, आपको पता होगा कि distribution systems के through kerosene, right, राइस, दाल वगैरह वो सब लोगों को अवेलेबल करवा के देते हैं at a low rates. तो they are selling food grains, उसके बदले उनको क्या मिलता है? Some they charge some amount. दूसरा एग्जांपल आई कैन गिव, गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज देती है, रेलवेज एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, तो उसके बदले में आपको क्या, आपको चार्जेस देने होते हैं, राइट. सो दोज आर
लाइक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट, उसके बदले हम उनको पेमेंट करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स थ्रू विच गवर्नमेंट रिसीव्स मनी. अभी एग्जाम्पल, आज मैं यहाँ पे एक जगह पे गया था दोपहर में, एंड स्टूडेंट वॉज विथ मी. तो वहां पे टू व्हीलर्स नॉन पार्किंग जोन से उठा रहे थे, क्रेन थी, क्रेन. तो मैंने उसको बोला, अरे आजकल क्या क्रेन यूज करते हैं क्या? बोला हाँ सर क्रेन यूज करते हैं, वो उसका अलग से चार्जेस भी लगाते हैं, टोइंग चार्जेस बोलते हैं, बराबर ना. वो चार्जेस भी लगाते हैं 150 रुपीज. मतलब आपके नो सिग्नल, लाइक आप नो पार्किंग जोन में हो, तो सपोज सर उसके 200 रुपए एंड टो करने के 150 रुपीज, टोटल 350 रुपीज वो लगाते हैं. मैंने बोला टो करने के मशीन तो उनकी है, क्यों लगा रहे हैं? बोलते सर लगाते हैं वो लोग. सो नाउ दिस ए पेनल्टी, बेसिकली दिस ए पेनल्टी. ये पेनल्टी है. ये पेनल्टी रहेगा कहाँ पे? तो यहाँ पे पेनल्टीज, हाँ, फाइन्स एंड पेनल्टीज. बट मैं एग्जांपल दे रहा था, मतलब ये भी गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अदर सोर्सेस एज वेल. टैक्सेस खाली एक सोर्स नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज आर आल्सो सोर्स. उसमें आगे पहले फीस, फिर आगे प्राइजेस ऑफ गुड्स, prices of public goods and services. Modern government sells various types of goods, commodities and services to its citizens. A price is a payment made by citizens, right? A price is payment made by the citizens to government for goods and services sold to them. Recently I applied for passport. अभी दिसंबर में I got passport. जब मैं पासपोर्ट ऑफिस में गया तो 1500 रुपए थे, वो फीस थी, सबको पे करनी थी. जिनको पासपोर्ट चाहिए 1500 रुपए. मैं अंदर गया, वहां पे फोटो कर निकालने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि सर आपको वो पासपोर्ट रखने के लिए वो ये होता है, इन्वॉल्व टाइप होता है उनका, आपको वो चाहिए क्या? मैंने बोला कितने में गिरेगा? उन्होंने बोला सर एक 300 रुपए का, एक 400 का, 500 का, 600 का. सपोज मैंने 500 रुपए का ले लिया, तो नाउ दे आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट. मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मार्केट में बाहर भी मिलेगा, बट उन्होंने बोला हमारे पास लेदर का है वगैरह. उन्होंने मुझे थोड़ा 2-3 चीजें एक्सप्लेन की. मैंने बोला ठीक है, अभी फिर किधर बाहर जाके लेते बैठूंगा, तो बेटर इधर मिल रहा है तो दे दो. तो आई परचेस टू. मुझे किसी ने बोला था कि मेरे लिए भी लेके आना, उधर मिलता है, तो उन्होंने मुझे दे दिया. उन्होंने रिसीट भी दे दिया ऑब्वियसली, बट नाउ दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो मैं वही समझा रहा हूं कि गवर्नमेंट सेल्स मेनी प्रोडक्ट्स, दे प्रोवाइड्स मेनी सर्विसेज, एंड फॉर दैट दे चार्ज. लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, राइट, घर पे वाटर सप्लाई होता है, उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, एग्जांपल. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मेनी सर्विसेज, तो उसके लिए हमें पेमेंट करना होता है. देन फॉर एग्जांपल रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्जेस एक्सेट्रा. आगे देन हम पोस्टल स्टैम्प्स लेते हैं, पता होगा आपको. इफ टू कुरियर समथिंग, हम जीपीओ में जाते हैं, वहां पे स्टैम्प्स लेते हैं, 10 रुपए के, 5 रुपए के, जितने की भी हमें चाहिए, राइट. तो वो हमसे स्टैम्प्स ले रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं. देन स्पेशल असेसमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. अब कोई स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो गवर्नमेंट वो भी करती है, उसके लिए अलग से चार्जेस लगाती है. लाइक the payment made by citizens of a particular locality in exchange for certain special facilities given to them by the authorities is known as special assessment. Special assessment मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने गवर्नमेंट से स्पेसिफिक सर्विसेज मांगी है, एंड उसके लिए, राइट, एज गवर्नमेंट रेंडर्स दो सर्विसेज, दे मेक द पेमेंट. स्पेशल असेसमेंट होता भी है. लाइक एग्जांपल, अगर आप एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, बॉम्बे में जहां पे एक्ट्रेस लोग रहते हैं सब, वहां पे सर्विसेज आर बेटर, तो उनके लिए उनसे ज्यादा टैक्सेस भी लेती है गवर्नमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई डोंट नो ऑन पेपर रहता है या ऑफ पेपर रहता है, बट उनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है बिकॉज वहां पे बाकी सब फैसिलिटीज रहती है. अगर कोई गवर्नमेंट, राइट, आपको कोई स्पेसिफिक सर्विसेज देती है किसी लोकेलिटी के लिए, कोई लोगों के लिए, एंड उसके लिए अगर चार्जेस लगाती है, तो उसको बोला जाएगा स्पेशल असेसमेंट, राइट. द पेमेंट मेड बाय द सिटीजंस ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेलिटी in exchange for certain special facilities
given to them by the government is known as special assessment. For example, local bodies can levy a special tax on the residents of particular area where extra special facilities of the road, energy, water supply, etc. are provided. अगर गवर्नमेंट उनको स्पेशली कुछ देती है तो आप वहां पे बोल सकते हो, राइट, उसको बोल सकते हो स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट. देन आगे इसके बाद आ गया फाइन्स एंड पेनल्टीज. ये तो सबको पता है. द गवर्नमेंट इंपोजेस फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन दोज who violate laws of the country, who violates laws of the country. Then the objective of imposition of fines and penalties is not to earn income. Objective income कमाना नहीं है, but rules and orders को maintain करना है, but to discourage citizens from violating the laws framed by the government. कभी कभी हमें उस पर डाउट भी आता है, like the way ट्रैफिक पुलिस वाले फाइन्स कलेक्ट करते हैं तो कभी कभी शक भी आता है कि एक्चुअली ये ट्रैफिक को मेंटेन करना चाहते हैं या जस्ट कलेक्शन करना चाहते हैं. बट व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड लेविंग पेनल्टीज एंड फाइन्स इज नॉट टू कलेक्ट द रेवेन्यू बट टू पेनलाइज द पीपल who infringe the law. So the government imposes fines and penalties on those who violate laws of the country. The objective of imposition of fines and penalties is not to earn the income, but to discourage the citizens from violating the laws framed by the government. For example, fines for jumping or violating the traffic rules. However, income from this source is small. Another is gift, grants and donations. People voluntarily give gifts, donations and grants to the government, or foreign governments may give gifts, grants and donations to the government. होता है. Like example, India, right? नेपाल को, like they provide many financial assistance. नेपाल को, भूटान को, जो हम हमारे आजू बाजू कंट्रीज है, अफगानिस्तान को सबको पता होगा. इतना है तो अफगानिस्तान को क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया में, उनका एक, उनके नाम, उनके लिए क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया में. आई थिंक, मुझे याद नहीं हो कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है, शायद से वो ये वाला है, धर्मशाला वाला है शायद से. बीसीसीआई ने उनको देके रखा है कि आपके कोई भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे यहाँ पे होंगे. तो एग्जांपल दे रहा हूं. तो गवर्नमेंट इन मेनी वेज प्रोवाइड्स हेल्प्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट. तो जैसे हम करते, कभी कभी हमें भी कोई, राइट, गवर्नमेंट्स करते होंगे, तो वो जो रहेगा दैट इज डोनेशंस, राइट. क्या लिखा है देखो, द गवर्नमेंट्स में ऑल्सो अर्न सम इनकम इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स बाय सिटीजन्स एंड अदर्स. द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पजेस. लाइक एग्जांपल बीआरटी की, पुणे में बीआरटी है, बराबर ना. हमने बीआरटी के लिए आई थिंक एशियन डेवलपमेंट बैंक से लाइक ग्रांट मिली थी फॉर द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. बाद में ये भी पता चला कि बीआरटी इज नॉट दैट मच गोना सक्सेसफुल. फिर भी उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया लोकल बॉडी ने, जस्ट बिकॉज उन्होंने ग्रांट तो लेके रखी थी. इफ दे डोंट इंप्लीमेंट दे हैव टू रिफंड इट, एंड लोकल बॉडी के पास पैसे भी नहीं रहेंगे. अब क्यों नहीं रहेंगे, गॉड ओनली नोस. उन्होंने कैसे तो वो करके बीआरटी इंप्लीमेंट कर दी, इवन दो दे नो कि इट इज नॉट गोना दैट मच सक्सेस. तो उसके लिए हमें ग्रांट मिली थी, एग्जांपल. सो दैट इज द थिंग. फॉरेन एड has become an important source of the development finance for developing countries like India. Developing countries को International Monetary Fund, Asian Development Bank, World Bank grants देते, donations देते. UN, United Nations, they give donations for the, like, to the developing countries or underdeveloped countries. That is one of the important source for them for their development. But that source is not that much certain. It is uncertain. However, this source is uncertain in the nature because international relationship पे like कौन dominate करता है, आपके relations कैसे, उस पे बहुत सारी चीजें dependent रहती है. So gifts, grants and donations received by government is also one of the source, right, non-tax source of the revenue. Special levies. Government sometimes levies special taxes. नॉर्मल इनकम टैक्स वगैरह होता है, स्पेशल लेवीज. एग्जांपल,
This is levied on those commodities the consumption of which is harmful to the health and well-being of the society or citizens. अगर अल्कोहल वगैरह उस पर अलग टैक्स होता है, ड्रग्स पे अलग टैक्स है, गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं इंपोज कर रही है, बट क्या होगा कि टैक्सेस लगाने से द प्राइस विल इंक्रीज एंड पीपल विल curtain down the consumption. It is for the well-being of the society. Tax collection is not the motive. Try to understand. This is levied on those commodities the consumption of which is harmful to the health and the well-being of the citizens. Like fines and penalties. Like fines and penalties, the objective is not to earn income but to discourage the consumption of harmful commodities by the citizens. For example, duties levied on wine, opium, and other intoxicants are example. And the last one is the borrowings. Government borrows. The government can borrow from people in the forms of deposits, bonds, etc. Government issues like bonds and people subscribe. People purchase those bonds, subscribe डिबेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एग्जांपल, जब रोड्स बनाने होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू करती है, पीपल, बैंक्स, म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब्स टू दोस बॉन्ड्स, उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है एंड विद दैट दे कैरी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज. एग्जांपल देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आर वेरी फेमस इन इंडिया. देन सीनियर सिटीजन सेविंग डिपॉजिट्स बोल के कंसेप्ट है, सेविंग डिपॉजिट कंसेप्ट, पीपल हैव टू सब्सक्राइब, सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको सब्सक्राइब करना होता है, यू कीप द मनी विद द गवर्नमेंट, बाद में आपको विद इंटरेस्ट और रिटर्न मिलता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, यू कीप द मनी विद द गवर्नमेंट, राइट, और बाद में विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिलता है, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड गवर्नमेंट गेट्स मनी टू यूज. ठीक है, द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. It also gets loan from the foreign governments and the organizations such as IMF, World Bank, etc. Loans are becoming more and more popular source of revenue for the government in the modern times. So these are some of the non-tax sources of revenue. Non-tax sources of revenue. ठीक है. So what I mean, try to understand. What I mean, ये जो हमने देखा, यहाँ पे आ जाओ हमारे डायग्राम पे. ठीक है, यहाँ पे देखो, ओपीएम मतलब अफू गांजा, उसको बोलते हैं अफू. अफू गांजा सुना होगा मराठी में आपने, वो ओपीएम, वो ओपीएम. आगे अब क्या देखा हमने, फीस, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी लोकेलिटी में कोई लोगों को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करती तो उसके लिए अलग से चार्जेस लगाती, वो हो गई स्पेशल असेसमेंट. फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज if you infringe the laws, gift, grants and donations received by government, special levies to avoid the consumption of certain commodities like wines, opium, etc. And the last one is borrowings, right? Borrowings from the public or international institutions, उनसे government right पैसा collect करती है, so that is public revenue. ठीक है. Then what do you mean by public debt? Public debt बहुत simple है, right? Public debt देखते हैं, it won't take more than 5 minutes. ठीक है, आगे what do you mean by public debt? ध्यान देना. Like a private individual, government also needs to raise the loans. Reason is very simple, our revenues are not sufficient to meet our public expenditure, and जो shortfall है वो हमें loans, borrowings करके meet करना होता है. So like a private individual, the government also needs to raise the loans. In fact, raising debt is the most common activity of any government because government expenditure generally exceeds government revenue. Public debt policy of the government plays an important role in the public finance. There are mainly two types of the public debts. पहले हम public debts को क्यों, why we go for the public debts? Because sources of revenue are not sufficient to meet the expenditure. एंड जो शॉर्टफॉल रहेगा वो हमें कहां से तो फिल करना होगा, तो हम जाते हैं लोन्स को. सो वी बोरो मनी. ठीक है, गवर्नमेंट बोरोज मनी. देयर आर टू सोर्सेस ऑफ द पब्लिक डेट फर्स्ट, और टू टाइप्स ऑफ द पब्लिक डेट्स.
इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट मतलब विद इन द कंट्री हम गवर्नमेंट लाइक डेट्स रेज करती है. एक्सटर्नल मतलब बाहर से. इंटरनल डेट्स when a government borrows from its citizens, its banks, central bank like in India RBI, financial institutions, business houses within the country is known as internet. When government borrows, right, from citizens, banks, central bank, RBI, financial institutions, banks, mutual funds, LIC, example, insurance companies, that is financial institutions, business houses within the country is known as internal debt. What do you mean by external debt? When government borrows from foreign governments, foreign banks or institutions like IMF, World Bank, etc., international organizations like International Monetary Fund, World Bank, etc., is called as external debt. From foreign governments, foreign banks and institutions, international organizations, it is called as external debt. So difference between internal and external debt. Internal debt versus external debt. Raised within the economy, raised from outside the economy. Internal debt वॉलंटरी और कंपल्सरी इन द नेचर हो सकता है. हम लोगों को कंपल्सरी बोलेंगे गवर्नमेंट इज नीड ऑफ मनी, यू हैव टू कंट्रीब्यूट, हम कंपल्सरी कर देंगे. वॉलंटरी भी हो सकता है, कंपल्सरी भी हो सकता है, बिकॉज वी आर कलेक्टिंग लोन्स फ्रॉम आर पीपल ओनली, फ्रॉम आर बिजनेसेस ओनली विद इन द कंट्री. वो कंपल्सरी पॉसिबल है, कंपल्सरी पॉसिबल है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? बट whenever we borrow from external, we cannot make it compulsory. वो वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी इन द नेचर. ठीक है. यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इंटरनल डेट के लिए रेज करने के लिए एंड रीपे करने के लिए सब कुछ रुपीज में होगा. जब आप लोन रेज करोगे, इंटरनल डेट रेज होगा, वो आपको रुपीज में होगा एंड रिपेमेंट भी किस में होगा? रुपीज में होगा. बट जब आप एक्सटर्नल डेट होगे तो जनरली डॉलर्स, राइट, फॉरेन करेंसी में होगा. यूज ऑफ फॉरेन करेंसी. लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट एंड दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स फॉर आप यू एंटर इनटू बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज. आपको ट्रीटीज एग्रीमेंट्स करने होते हैं उसके लिए, राइट? सो इंटरनल डेट वर्सेस एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट इज लेस कॉम्प्लेक्स, external debt is more internal debt is less complex as compared to external debt. So these are the difference between internal debt and external debt. Classify the following activities into internal and external debt. Government selling bonds to its citizens. ये क्या रहेगा रे बोलो? Internal और external. Government selling its bonds to citizens. बोलो. Government selling internal, perfect. ये internal होगा, बहुत simple है. Then Government of India borrowing funds from World Bank for the provision of water supply. ये क्या रहेगा? World Bank से ले रहे हो, right? Obviously it is external, perfect. Then Government of India takes loan from nationalized banks for developing infrastructure facilities in the country. Government nationalized bank से पैसे लेती है, it is internal. And the last one, Government of India takes loan from World Bank for Mumbai Metro train. It is external. ठीक है? So these are the things. ठीक है? So now what do you mean by fiscal policy? ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट्स, इनके रिलेटेड जो पॉलिसीज रहेंगे उसको कंबाइन बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो जो डिसाइड करते हैं वो फिस्कल पॉलिसी होती है. फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ध्यान देना, व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज मींस बाय व्हिच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस ए नेशंस इकोनॉमी. इट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, public revenue and public debts. In short, it is a financial policy implemented by the government. So, like example, जब fiscal policy आती है तो उसमें लिखा जाता है कि what are direct taxes, what are indirect taxes. गवर्नमेंट जो बजट है, बजट जो आता है वो फिस्कल पॉलिसी. सपोज गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, कहाँ पे कितना पैसा खर्चा करना है,
और व्हाट विल द सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू, व्हाट विल द बोरोइंग्स, एवरीथिंग, ऑल द पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसको बोला जाएगा फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी. एंड द लास्ट वन इज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. क्या लिखा है देखो, ठीक है. एक लिख लेना, एक होती फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती मॉनेटरी पॉलिसी. कहां पे तो लिख लेना, फिस्कल पॉलिसी इज सेट बाय, राइट, सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जनरली फाइनेंस मिनिस्टर, FM, finance minister, which deals with public expenditure, public revenue and public debts. बजट सिंपल वर्ड्स में. लाइक एग्जांपल, अभी कोविड-19 आया, पूरा लॉकडाउन था, फिर गवर्नमेंट ने बजट लाया, सॉरी गवर्नमेंट ने पैकेजेस लाए, वो आ गया फिस्कल पॉलिसी में. तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इतने लाइक सेक्टर को इतना देंगे, लोगों को इतने कैश मिलेगी एवरी मंथ, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको इतनी कैश मिलेगी, हम उनको कम रेट में फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवा के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे. वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हो गया, विच इज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है. एंड पब्लिक डेट्स, पब्लिक डेट्स. एंड दूसरा होती है मॉनिटरी पॉलिसी. लिख लेना मॉनिटरी पॉलिसी. मॉनिटरी पॉलिसी इज सेट बाय RBI, इंडिया में मतलब सेंट्रल बैंक, रिलेटेड टू, राइट, रिलेटेड टू, राइट, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. नेक्स्ट वाला चैप्टर इसके रिलेटेड ही है, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. तो दो पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करता है, एंड दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI गवर्नर अनाउंस करता है. मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, मनी सप्लाई रेगुलेट करना, इंटरेस्ट रेट्स रेगुलेट करना, वो सब किसमें आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आता है. एंड फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिस्कल, जब ये फिस्कल पॉलिसी बनती है ना, तब ऑब्वियसली उस कमेटी में RBI का गवर्नर भी होता है, because he helps finance minister in deciding the fiscal policy. गवर्नमेंट को क्या गाइडेंस चाहिए तो RBI गवर्नर भी उसमें रहता है, उस कमेटी में. वो कमेटी बहुत बड़ी रहती है, उसमें ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रहेंगे, CA के रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, CS के रहेंगे, CWA के रहेंगे, लाइक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रहेंगे वगैरह, सबके रिप्रेजेंटेशन रहेंगे. बड़ी कमेटी होगी और वो डिसाइड करेंगे, वो डिलिब्रेट करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. दैट इज फिस्कल पॉलिसी. बट मॉनेटरी पॉलिसी में, राइट, RBI की जो पैनल है वो रहता है, ठीक है. सो ये समझना इंपॉर्टेंट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, a smooth and efficient implementation of the revenue, expenditure and debt policy of the government is referred to financial administration. Like example, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसको रिव्यू भी करना चाहिए, उसको ठीक से, राइट, हर एक के बैंक के अकाउंट में जाना चाहिए. इसको एडमिनिस्टर करने के लिए देयर आर ऑफिसेस, देयर आर ऑफिसर्स. लाइक आप जब लोन्स देते हो लोगों को या SMEs को लोन देते हो, डिसबर्स होने के लिए देयर इज अ नाबार्ड, एग्जांपल एग्रीकल्चर लोन्स के लिए, ठीक है, उनके थ्रू होता है, SBI के थ्रू होता है, नेशनलाइज बैंक के थ्रू होता है. देयर आर SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं. तो ये जो सब चेन बन गए ना, इसको बोला गया, आपको आप बोलोगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये सब साथ में आके वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं. दे चेक whether policies are actually implement हो रही नहीं हो रही है, they will take feedback and अगर उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो करेंगे. खाली फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली में बैठ के काम नहीं हो सकता. लाइक जब हम बोलते हैं टैक्स कलेक्ट करना है तो आपको आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स मिलेंगे हर सिटी में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे आपको GST ऑफिसेस मिलेंगे, GST भवन मिलेगा हर जगह पे, उनके हेल्पिंग सेंटर्स रहेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड.
सो लोगों तक वो जा सके। तो वो सब आ गया ना, वो आ गया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है ध्यान देना, व्हाट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? ए स्मूथ एंड इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज रेफर्ड एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट्स, उसका स्मूथ इंप्लीमेंटेशन हो, उस वो जो प्रोसेस है उसको बोला जाएगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इंक्लूड्स प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट्स अलॉन्ग विथ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। एंड इसलिए गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है? बजट। ठीक है, सो हम यहां तक आए, राइट? किसी ने कल मुझे बोला था सर टाइप्स ऑफ बजट्स नहीं है या नहीं है? फाइनली मुझे बोलो टाइप्स ऑफ बजट। अब इसके आगे क्या है? देयर आर लाइक, आगे देखोगे व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, टू टाइप्स ऑफ बजट्स, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। यहाँ पे चाहे शायद से चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, ओके। किसी के पास इको का कंप्लीट सिलेबस है तो प्लीज शेयर विथ मी, आई विल गो थ्रू इट। सो एक लेक्चर में हमारा बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। टुमारो आई वोंट बी टेकिंग एनी लेक्चर, ठीक है? डे आफ्टर टुमारो ऐसे ही 7:30 to 8:30 हम लेक्चर करेंगे, और 2-3 दिन करेंगे तो हमारा एक और चैप्टर हो जाएगा। सो विल बी इन अ गुड पोजीशन, राइट? सो लेकिन ये चैप्टर्स आर मोर ऑफ थ्योरी, यू नीड टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है? ओके, द टाइप्स एंड द इंपॉर्टेंस बोथ आर रिड्यूस। ओके, प्लीज शेयर द सिलेबस विद मी, एक बार मैं चेक कर लूंगा फिर मेरे एंड पे, ठीक है? अच्छा, चलो, एनीथिंग एल्स? किसी के डाउट से विच आई हैव टू टेक बिफोर आई एंड टुडे सेशन? टुमारो देयर वोंट बी एनी सेशन, ठीक है? ओके, गुड, थैंक यू। शेयर में द कंप्लीट सिलेबस, मतलब मुझे क्लिक होगा, मतलब उसमें से कितना ओमिट हुआ है और क्या बाकी है। थैंक यू।